Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today's topic is Morphological Image Processing. So before going into that, we will summarize the previous lecture. And in the last lecture, what we have learned that image segmentation using similarity basis. And in that, one of the major topic was region-based segmentation. And in region-based segmentation, we were learning how to have this region growing and region splitting and merging method. So we learn basically that if we start from one point, then we can grow this point by similarity measures to see only the neighbors information and comparing it with the concerned pixel or the point from where we take this seed point. And then what we do, we just continue until if there is no changes. And then the next one was split and merge. So in that, what we do, we divide the image if there is some discontinuity or if there is no similarity in the one particular part of the image. So we divide until we have no dissimilarities or we have no changes in one specific part. So we form a tree, a quad tree, and this quad tree, the leaves of the quad tree, we combine it based on some similarities, if they have same intensity or if they have same color or texture or whatever the similarity we want to compare or want to match. So these were the basic region growing and splitting and merging methods. And after that, we learn a little bit about color-based segmentation. So today we will talk about morphological image processing, and this is a bit of different kind of processing until now we have learned. And then we will see what is splits, set points, and then we will also see the structuring elements of the image. And then after that, we will see two different morphological operation, and that is dilation and erosion. So first of all, what is the morphological operation, what it means by morphology? So a branch of biology that deals with the form and structure of animal and plants. So this is actually from a biology point of view, that if we want to see the structure of the animal or maybe the plants, or if we see the form of it, that from which form it belongs to, then this is what we call it as a morphology. So this same thing, if you take this definition and we put it in our images, then what we will do in morphological image processing is used to extract image components for representation and description of a region's shape, such as boundary, skeleton and convex hull. हम different किस्म के morphological structure जो हैं उनको लेते हैं, क्योंकि हमने बात की कि बायोलॉजी की फील्ड में हम इसके फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं किसी भी प्लांट और एनिमल्स के. तो यहाँ पर हम इमेज के लिहाज से उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं. शेप हो गए, उसकी बाउंड्रीज हो गए, स्केलेटन्स हो गए, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको लेते हैं और उनके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उनके ऊपर हम डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग करते हैं. So morphological image processing is the field of mathematical morphological contributes a wide range of operations to image processing, all based around a few simple mathematical concepts from set theory. अब हम क्योंकि morphological image processing है, तो हम normally इसमें mathematical operations perform करते हैं, और these mathematical operations जो हैं वो set theory से हम लेते हैं. तो क्योंकि हम इमेज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो एज अ वेक्टर, एज अ सेट रिप्रेजेंट करते हैं. अब तक जो हमने देखा, तो हम इमेज को सिंपली उसकी इंटेंसिटी और उस लिहाज से देखते हैं कि इमेज को कंटिन्यूसली हम देख रहे होते हैं ग्रिड की फॉर्म में. और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इमेज को कन्वर्ट करते हैं एज अ सेट थ्योरी, एज अ
एज अ वेक्टर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सेट थ्योरी के परफॉर्म होंगे कि क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सेट, तो हम उस सेट थ्योरी के लिहाज से उसको कंपेयर करते हैं। द ऑपरेशंस आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ बाइनरी इमेजेस एंड कॉमन यूजेज इंक्लूडिंग एज डिटेक्शन, नॉइज रिमूवल, इमेज इन्हांसमेंट एंड इमेज सेगमेंटेशन। अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस की? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमेजेस होते हैं जिनके ऊपर हम मुख्तलिफ सेगमेंटेशन अप्लाई करते हैं तो वो प्रॉपरली जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें जनरेट करके नहीं देते। उसकी वजह ये हो सकती है कि जो एजेस हैं वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो रहे, वो या आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम इस वजह से पहले उसके ऊपर मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ताकि उसमें कुछ एरियाज जो हैं वो क्लियर हो जाएं, वो नॉइज़ रिमूव हो जाए। तो जब ये सारे काम हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास उसकी जो ऑब्जेक्ट की रिकग्निशन हो गई या उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई तो हम वो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ हम कम्प्लीटली डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो कि मैथमेटिकल सेट थ्योरी से होते हैं, और नॉर्मली हम ये परफॉर्म करते हैं बाइनरी इमेज के ऊपर। तो हम अगर हमारे पास कलर इमेज है या ग्रे स्केल इमेज है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी इमेज में, फिर उसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और हम देखते हैं कि अगर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं तो हम वो वाले जो एरियाज़ हैं पिक्सेल्स के वो ले लेते हैं और उसके ऊपर ओरिजिनल इमेज के ऊपर सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो हम सिंपली स्टार्ट बाइनरी इमेज से करते हैं क्योंकि वहाँ पर जब हम एडिशन कहेंगे पिक्सेल्स की तो इसका मतलब ये होगा कि हम दो सेट्स को आपस में ऐड कर रहे होंगे, तो वो सिंपल सेट थ्योरी से जो हमारे पास जो भी ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म कर सकेंगे। Now structuring the element, morphological techniques typically probe an image with a small shapes or template known as a structuring element. अब हम अब तक जो हमने देखा कि हम मास्क अप्लाई करते हैं, जो मास्क का साइज़ है वो 3x3 और 5x5 और 7x7 डिफरेंट किस्म के हम मास्क ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उस मास्क की बजाय हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट करते हैं। हम डिफरेंट किस्म के स्मॉल पोर्शंस में एक टेम्पलेट लेते हैं और उस टेम्पलेट को हम यूज़ करते हैं। उस टेम्पलेट को हम कर्नल भी कह सकते हैं। तो उस कर्नल को हम लेते हैं और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हम देखेंगे डिटेल से। तो हमारे पास जब हम अप्लाई करना चाहेंगे जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक टेम्पलेट हो, एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज़ पोजिशनल एट ऑल पॉसिबल लोकेशन इन द इमेज एंड इट इज़ compared with the corresponding neighborhood of pixels। अब हम जब ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं तो इसको हम अप्लाई करते हैं पूरे इमेज के ऊपर और उसके जो नाइबरिंग ज़ाहिर है जब हम उस सेट थ्योरी के थ्रू हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक सेट होगा जो कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा और दूसरा जिसके ऊपर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो नॉर्मली इमेज होगा। तो इमेज के ऊपर जब हम ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ऐड करेंगे या उससे डिलीट करेंगे या उसके साथ यूनियन लेंगे तो वो उन सारे जो कंसर्न एलिमेंट्स हैं या वो जो कंसर्न पॉइंट्स हैं उसके साथ उनकी इंटरेक्शन होगी। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस डिफर इन हाउ दे कैरी आउट दिस कंपैरिजन। हर एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है और उसकी वजह यह है कि जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी जो टेक्निक है वो डिफरेंट होती है, वो वैल्यूज़ उसके डिफरेंट होते हैं टेम्पलेट के, या उसके जो यूनियन है या उसके इरोजन है, डिलीशन है, वो डिफरेंट तरीके से होगी। अब हमने चूंकि ये बात की कि हम सेट थ्योरी को के जितने भी ऑपरेशन है उनको अप्लाई करेंगे तो अब सेट थ्योरी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इमेज को रिप्रेजेंट करें एज अ सेट। तो अब हम इसको सेट्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो और हमारा जो इमेज है वो सिंपली ब्लैक एंड वाइट के सिचुएशन में हो। अगर हम ये कहें कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका कलर हमने वाइट रखा हुआ है
तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 की लोकेशन पर, और उसकी वजह यह है कि हम जो पहला हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा 0 0, और उसके बाद हम नेक्स्ट करते जाएंगे। तो अब हम इसको रिप्रेजेंटेशन एज अ सेट थ्योरी हम कैसे कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि एक x कैपिटल X है और उसके जो वैल्यूज़ हैं वो सेट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं 2 0 और इस पॉइंट के लिए, और फिर हमारे पास अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो ये हमारे पास होगा 2 1, सेम इसी तरह 1 2, और इस तरह हम आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। तो अब ये हमारे पास जितने भी एरियाज़ हैं जो वाइट कलर में होंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे सेट्स के साथ के उसकी लोकेशंस क्या है। और हमने अगर बैकग्राउंड लेना होगा तो हम बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, हम एक्स सी लेंगे जो कि कंपोनेंट होगा। तो वो कंप्लीमेंट जो होगा तो वो कंप्लीमेंट एक्चुअली रिवर्स ऑफ जो भी हमारे पास उसके ऑब्जेक्ट्स के अलावा जो भी पॉइंट्स आएंगे तो हम उनको जब लेंगे तो वो उसका कंप्लीमेंट आएगा, उसका रिवर्स आएगा। तो ये अब हमारे पास सिंपल सेट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड होगा कि हम एक इमेज को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको एज अ सेट पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वो सेट जो है वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन क्या है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ना कि हम उसकी इंटेंसिटी की वैल्यूज़ लेते हैं या हम उसकी जो ग्रे स्केल या कलर की वैल्यूज़ हैं हम उनको लेते हैं। हम उनकी बजाय हम क्या करते हैं कि हम उसकी जो लोकेशन है उसको एज अ पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कौन से लोकेशन पर एग्जिस्ट करता है। तो हम इसके लिए सिंपल क्या करते हैं, हम इसको जब इमेज को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इसको स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद सिर्फ उन ऑब्जेक्ट के लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो द बेसिक फंडामेंटल्स विल बी we define an image as an amplitude function of two real coordinate variables a, x and y, or two discrete variables a, m and n. तो हम इसको कोऑर्डिनेट के लोकेशन वेरिएबल्स के तौर पर हम a, x, y लेते हैं, और अगर हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स लेते हैं तो हम उस सिचुएशन में इसके a, m and y की वैल्यूज़ ले लेते हैं। An alternative definition of an image can be based on the notation that an image consists of a set or collection of either continuous or discrete coordinates. अब हम सिंपली क्या करते हैं कि हम इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूस सेट्स के साथ, जो वैल्यूज़ हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखा उनके साथ। तो वो हमारे पास डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और वो कंटिन्यूस भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेट्स। In a sense, that set corresponds to a point or a pixel that belongs to an object in the image. अब हमारे पास जो इमेज है हम उसमें ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बेस पर हम उसकी corresponding देखते हैं। This is illustrated in figure which contains two objects or set A and B. Note that the coordinate system is required for the moment we will consider the pixel values to बी बाइनरी। अब हम देखते हैं कि जो लोकेशन A है, जो ऑब्जेक्ट A है वो उसके कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से उसकी लोकेशन होगी, और जो B है तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से उसकी लोकेशन होगी कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ऑब्जेक्ट्स को हम सिंपली उसके कोऑर्डिनेट के लोकेशन के लिहाज से उसको कन्वर्ट कर देते हैं एज अ पॉइंट्स। द ऑब्जेक्ट A कंसिस्ट ऑफ those pixel at the share some common properties. हम ऑब्जेक्ट A को कंसिस्ट करते हैं कि वो क्या होगा हमारे पास, अगर वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज उनकी सेम हो तो तब हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे कंसिडर करेंगे उसका सिंपल फार्मूला होगा हमारे पास कि सेट में हम कैसे आएगा कि A इज इक्वल टू अल्फा फॉर सच ऑल अल्फा if the properties are equal to true. अगर तो उनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास ट्रू आ रही हैं तो वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ऑब्जेक्ट A के लिए।
The background of A is given by A of C, that is a complement of A, which is defined as those elements that are not in A. तो जो हमारे पास A में शामिल नहीं होंगी तो हम उनको एज अ कम्प्लीमेंट लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया. तो A complement is equal to alpha such that alpha is not member of A. तो जो भी वैल्यूज़ होंगी इसकी ऑब्जेक्ट के बाहर की, तो हम उसको एज अ बैकग्राउंड लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट उसको कंसिडर करते हैं अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम हो. तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वो उसके बाइनरी वैल्यूज़ होंगी. तो बाइनरी वैल्यूज़ के लिहाज से हम उसको आपस में कंपेयर करते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है हमारे पास वाइट आ रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक आ रहा है. तो हम इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, हमारे पास बैकग्राउंड ब्लैक हो और ऑब्जेक्ट जो है वाइट आ सकता है. तो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, totally depending on our application. So the fundamental definition for operations associated with object are the standard set operation, union, intersection and complement plus translation. तो जब हम standard operations की बात करेंगे तो हमारे पास set theory के जो भी operations होंगे, union, intersection, complement और translation, हम इनको use कर सकते हैं. और इस तरह हमारे पास बेसिक जो भी ऑपरेशंस हैं, जिस तरह हम सिंपल लेते हैं मेंबर का, इफ़ A is equal to A1 and A2 is an element of A, then we write it as A belongs to A. सेम इसी तरह हम देखते हैं कि अगर नॉट बिलोंग के लिए है तो हम सिंपल ये वाला साइन यूज़ करते हैं. अ सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए नल और एम्प्टी सेट एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल नल. हम जो नल सिंबल है हम उसके साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट B, then A is said to be subset of B, denoted as A is subset of B. तो ये हमारे पास जो बेसिक सेट थ्योरी है उससे हम इन पॉइंट्स को लेते हैं और हम थोड़ा सा उसको समराइज करते हैं ताकि अगर हम इनको आगे यूज़ करें तो हमें पता हो, हमें याद आए कि हमने सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब था कि वो बिलोंग करे. द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय C इज इक्वल टू A यूनियन B. तो हम इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो वो उसका यूनियन बन जाएगा. इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू आइदर A और B बोथ. तो यहाँ पर जो हमारे पास सेट आएगा तो वो A या B दोनों के हो सकते हैं या दोनों में से किसी एक से बिलोंग कर सकते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A एंड B डिनोटेड बाय, हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो इस सिचुएशन में D is equal to A intersect B is the set of elements belongs to both A and B. तो हम सिर्फ वो वाले पॉइंट्स लेते हैं जो A और B दोनों से बिलोंग करते हैं. Two set A and B are said to be adjoint or mutually exclusive if they have no common elements. अगर तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो हम उसको डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वैल्यूज जो हैं वो लेते हैं. तो वो क्या होते हैं? इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल. तो हम उसके अगर हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेट्स में आपस में कोई भी जॉइनिंग पॉइंट्स नहीं है, ये दोनों बिल्कुल आपस में अलग हैं. तो ये हमारे पास डिफरेंट छोटे से जो सेट थ्योरी के ऑपरेशंस हैं हम इनको देखते हैं. साथ में अब हम जो थोड़े से डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस हैं हम उनको देखेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को देखते हैं ताकि हम आगे जब इसको यूज़ करें तो हमें इसकी समझ हो कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या है? स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज समटाइम कॉल्ड द कर्नल, बट वी रिसीव that term for the similar object used in covulation. The structuring element consists of patterns specified as the coordinate of number of discrete points relative to some origin. Normally Cartesian coordinates are used, and so a convolution way of representing the element is as small image or in rectangular grid. तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट होता है, स्मॉल साइज़ में,
एज अ ग्रिड हो सकता है, एज अ रेक्टेंगल हो सकता है, एज अ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं उस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को। सो यहाँ पर हमारे पास उसकी फिगर है, ये हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और एक उसका कोई सेंटर है। So figure shows a number of different structuring element of various size. In each case, the origin is marked by a ring around that point. The origin does not have to be in the center of the structuring element, but often it is. As suggested by the figure, structuring element that fit into a 3x3 grid with its origin at the center are the most commonly seen type. तो जो हमारे पास सिंपल रेक्टेंगल के फॉर्म में जो आ रहे हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सारे जो नाइबर्स हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं और साथ में जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, जो उसका हमारे पास सेंटर है, हम उसको भी देख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर हमेशा मिड में आए, हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। और साथ में हम देखते हैं कि जो वैल्यूज़ है ये भी चेंज हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे जो पॉइंट्स हैं हमने उनको कंसिडर नहीं किया, उनमें सिर्फ एक एरिया को कंसिडर किया है। और सेम इसी तरह हम उसके जो सेंटर वैल्यू है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये टोटली स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। द मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस आर जनरली डिफाइंड विद द रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर सेट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो अब हमने कौन सा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा morphological operation क्या होगा। The structuring elements for image are pixel array themselves। तो हम नॉर्मली जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं वो एक पिक्सल एरेज हो सकता है। The structuring elements are defined relative and origin typically is the center of the gravity। तो हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का जो सेंटर होता है हम उसको नॉर्मली ओरिजिन कहते हैं कि ये उसका ओरिजिन है। Structuring elements are described using the following conventions। Filled cell belongs to the structuring element। हमारे पास जो filled area है हम ये structuring element के साथ इसको काउंट करते हैं कि ये structuring element के पॉइंट्स हैं जो हमने आगे यूज़ कर रहे हैं। White cell does not belong to the structuring element। जो हमारे पास white areas हैं वो बिलोंग नहीं करते स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो सिर्फ ये वाला एरिया है। और जहाँ पर हमने क्रॉस लगाया हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हाँ इसके साथ कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ जो भी हमारे पास इनपुट जो इमेज की होगी वो एग्जैक्टली यहाँ पर प्रेडिक्ट हो रही होगी। तो ये हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ले रहे हैं या सेट थ्योरी लेना चाह रहे हैं तो सेट थ्योरी में हम इन सारे वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। So there are some other examples of structuring element. So it can be in this shape. So for this shape we know that we can represent it as a grid। अगर ग्रिड के फॉर्म में होगा और हम सिर्फ इन एरियाज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि हम इनको यूज़ कर रहे हैं और ये उसका सेंटर पॉइंट आ गया। सेम इसी तरह अगर हम इसको लेते हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशंस तो इस तरह ही आएगी। और सेम इस तरह हम अगर इसके लेते हैं जो कि एक लाइन की फॉर्म में आएगा तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है हमारे पास, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड में हम ले सकते हैं। और इसी तरह अगर हम कोई डायमंड शेप की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि एक ग्रिड की फॉर्म में ले सकते हैं तो ये जो एरियाज़ हैं ये हमारे पास काउंट नहीं होंगे, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट we can summarize it. Note that each point in the structuring element may have a value. In the simplest structuring element used with binary image for operations such as erosion, the element only one value, conventionally represented as a 1. More complicated elements such as those with the thinning or grayscale morphological operation may have other pixel values. तो हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं और हम 1 के अलावा हम बहुत सारे वैल्यूज़ ले सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के ऊपर कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज़ ऑलरेडी जस्ट अ सेट ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑल्दो इट इज़ ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी इमेज।
तो हम जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको एज अ स्मॉल बाइनरी इमेज कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि साइज इसका छोटा होता है और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सिंपल 1 0 हो सकती हैं. It differs from the input image coordinate set in that it is normally much smaller and its coordinates origin is often not in a corner, so that some coordinate elements will have negative values. तो हम इसको डिफरेंट इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है और ये पूरे इमेज के ऊपर स्कैन करता हुआ जाता है जिस तरह हमारे पास मास्क होता है. नोट दैट इन mainly implementation of morphological operation, the structuring element is assumed to be the particular shape that is 3 by 3 squared, and so is hardwired into algorithm. और जो हम normally use करते हैं, हम 3 by 3 का जो square structure है हम उसको use करते हैं. तो ये हमारे पास सिंपल उसकी समराइजेशन हो गई. हम अगर अब इसको यूज़ करते हैं 2 डायमेंशन की फॉर्म में तो वो किस तरह होगा. 2 मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास एक ये फॉर्म आ गई जिसके हम सिर्फ जो 4 नाइबर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है उसके 8 नाइबर्स जो हैं, टोटल नाइबर्स जो हैं हम उसको यूज़ करते हैं जो कि डायगोनल और हॉरिजॉन्टल दोनों है. So what are the operations that we can perform using this structuring element? So fundamental morphological operations are erosions and deletion, work at least conceptually by translating the structuring element to various points in the input image and examining the intersection between the translated kernel coordinates and input image coordinates. तो हम erosions और dilations देखते हैं. तो ये जो दोनों मेथड्स हैं हम इनको अभी डिटेल से देखते हैं. Virtually all other mathematical morphological operations can be defined in terms of combinations of erosions and dilations along with set operations such as intersection and union. Some of the more important operations are opening, closing and scatterization. हम ओपनिंग और क्लोजिंग को भी साथ में देखेंगे. तो ये हमारे पास जो है बेसिक ऑपरेशंस हैं, डायलेशन और एरोजन्स, और हम इनको यूज़ करते हैं. और बाकी जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो भी इन्हीं की कम्बिनेशंस में से ही आ जाता है. तो अब हम बात करते हैं डायलेशंस की. तो डायलेशन क्या है? द बेसिक इफेक्ट ऑफ ऑपरेटर्स ऑन अ बाइनरी इमेज इज gradually enlarging the boundaries of region of foreground pixel. Thus, areas of foreground pixels grows in size while holes within these regions become smaller. हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये एक इमेज है और हम बैकग्राउंड को लेते हैं एज अ 0 ब्लैक और फोरग्राउंड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है हम उसको लेते हैं एज अ 1 वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए. तो डायलेशन में सिंपली क्या होगा, जो बॉर्डर्स हैं वो और एक्सटेंड हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं. और जो अगर दरमियान में कोई ऐसे नॉइज़ हो या कुछ ऐसे डॉट्स हों जो कि चंद एक पिक्सेल्स पे बिलोंग करे तो हम उन पिक्सेल्स को बहुत इजीली रिमूव कर लेते हैं. तो ये डायलेशन सिंपली क्या है कि हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट के बाउंड्रीज़ को इन्हांस करें, उनको और इंक्रीज़ करें. और अगर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कहीं पर मिड में हैं तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं. तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला क्या लिखते हैं कि जो हमारा फार्मूला है वो डायलेशन का आएगा x, और डायलेशन का साइन हमारे पास प्लस का आएगा, और b जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है. तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं P is the member of Z2, और Z2 हम Z को ले रहे हैं इमेज के तौर पर क्योंकि वो 2 डायमेंशन है, तो हम इस वजह से उसको स्क्वायर लेते हैं. सच दैट P is equal to X plus B and X is member of capital X and B is the member of capital B.
तो ये अब हमारे पास एक डिफिनीशन आ गई है डायलेशन की, कि हम अगर डायलेशन कर रहे हैं तो बी हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, एक्स हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, तो एक्स हम इमेज का डायलेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो डायलेशन के लिए हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का होना ज़रूरी है। तो P बिलोंग्स टू टू डायमेंशनल इमेज जो है हम उससे बिलोंग करते हैं, और इज़ इक्वल टू एक्स प्लस बी, हम सिंपल इनको एडिशन हम करेंगे, और सिचुएशन क्या होगी कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो ये अब हमारे पास एक डिफिनीशन आ गई। दूसरी डिफिनीशन डायलेशन की ये हो सकती है कि x डायलेशन ऑफ B विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट B। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि P सच दैट B जो है हम इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो हम इसको एज अ बी हैट रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है रिफ्लेक्शन को। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ P विद यूनियन X डज नॉट बिलोंग टू नल सेट। तो ये अब हमारे पास दूसरी डिफिनीशन हो सकती है कि डायलेशन की, कि हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों में किसी एक के लिए हम डायलेशन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की कि जो B का रिफ्लेक्शन है वो क्या हो सकता है। तो B का रिफ्लेक्शन हम सिंपली रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास आएगा B हैट इज इक्वल टू W such that W is equal to minus B for B belongs to capital B। तो ये अब हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन आ जाएगी कि वो सारे पॉइंट्स जो कि B का निगेशन लेने के बाद आएंगे तो वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ B होगा। मतलब ये हुआ कि हम B जो ऑब्जेक्ट है उसके अलावा जो भी हमारे पास उसके निगेशंस हम लेंगे तो वो पॉइंट जो भी आएंगे तो हम उसको एज अ रिफ्लेक्शन काउंट करेंगे। और साथ में हम ट्रांसलेशन को भी देखते हैं, क्योंकि आगे हम इसको यूज़ करेंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास जो डिफिनीशन होगी वो क्या होगी कि हम Z कोई भी हमारे पास ट्रांसलेशन का फंक्शन हो सकता है, और वो हमारे पास Z1 और Z2 कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि x y कोऑर्डिनेट्स में हम होंगे, और हमने जब उसको कन्वर्ट किया सेट पॉइंट्स में, तो सेट पॉइंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रहे होंगे। सो जैसे हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ लेते हैं कि वो हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। इफ़ A Z के लिहाज से अगर हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो वो क्या होगा, C such that C is equal to A plus Z for all values of A belongs to capital A। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन होगी। हम इस Z के लिहाज से इसको चेंज करेंगे, और हम देखते हैं कि हम सिंपल उसमें एडिशन करते हैं इन वैल्यूज़ का, जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी। तो ये माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है हम किस डायरेक्शन में इसको लेकर जाना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली अगर हम इमेज के लिहाज से देखेंगे तो वो सारे एक सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करेगा। तो अगर हम सिंपल एक ग्रिड लेते हैं जो हमारे पास इमेज है, और ये हमारे पास x आएगा, और अगर हम इस वैल्यू इसको लेते हैं तो ये हमारे पास b आएगा। ठीक है, अब हम जब इसके ऊपर डायलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमने ये बताया कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम
ब्लैक और वाइट के सिचुएशन में डिफाइन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और अगर हम यहाँ पर लेते हैं सिंपलिंग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को, तो हम अगर ये 2 पॉइंट सिर्फ लेते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 के साथ और 1 0 के साथ। तो ये हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो गया। और अगर हम x जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा, हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे 3 2 2 2 3 1, और सेम इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाते हैं। तो हमने ये बात की कि हम ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को लेते हैं, और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को सिंपल जब हम डिफिनीशन देखेंगे डायलेशन की, तो डायलेशन की डिफिनीशन जो फर्स्ट है हम इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ हमने ये बात की कि हम सिंपल x प्लस b करते हैं, हम वैल्यूज़ को ऐड करते जाते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब हम x और b के हर एक एलिमेंट को लेते हैं और उसको ऐड करते जाते हैं, उसके हर एक वैल्यू सिंपल उसके हर एक सेट की वैल्यू के साथ। तो हम देखते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को लेते हैं, इसके साथ ऐड करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ आएंगे जो कि ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, और वो हमारे पास ब्लैक वैल्यूज़ हैं, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम इस पॉइंट पर पहुँचते हैं, तो इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद जब हम इसको ऐड करेंगे इस जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसके साथ, तो हम देखते हैं कि अगर 3 और 2 है, तो चूंकि 0 0 के साथ ऐड होंगे तो उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम 1 0 के साथ ऐड करेंगे तो हम उसका असर देखते हैं कि 1 0 के साथ उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं 4 और 2। तो 4 और 2 की जो लोकेशन है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि ये जो है 4 और 2 लोकेशन पर इधर। अब सेम इसी तरह अगर हम बाकी सारे वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे तो हम देखते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं ये सारे के सारे हमारे पास हाईलाइट हो जाएंगे कि ये वो एरियाज़ हैं जो कि डायलेशन में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इन एरियाज़ को सिंपली जब हम देखते हैं कि जो इमेज है हमारे पास, अब बजाय इसके कि डायलेशन के बाद उसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो इनमें ये वाली एरिया भी साथ में ऐड हो जाएंगे। तो
डायलेशन सिंपल प्रोसेस हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास b की वैल्यूज़ हैं, जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, हम उसको ऐड करते जाते हैं. अगर हम सिंपल पहली ये वाली डिफिनीशन लेते हैं, अगर हम ये दूसरी डिफिनीशन लेंगे तो भी हमारे पास एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा. और इसके अलावा भी डायलेशन के डिफरेंट अदर मेथड्स भी हैं. इसका मतलब ये कि हमारे पास एक और फार्मूला भी है. तो हम डायलेशन का जो भी सेट थ्योरी से जो भी फार्मूला लेंगे तो वो हमारे पास एग्जैक्टली रिजल्ट्स उसके इस तरह आएंगे. तो हम डायलेशन में सिंपल एडिशन करते हैं जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उनके पॉइंट्स को. सो द डायलेशन ऑपरेशन टेक्स टू पीस ऑफ डेटा एज अ इनपुट. The first is the image which is to be dilated. The second is a usually small set of coordinate points such as known as a structuring element, or it is also known as a kernel. It is the structuring element that determines the precise effect of dilation on the input image. तो जो हमारा structuring element होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इमेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा. The mathematical definition of dilation for binary image is as following. Suppose that X is the set of Euclidean coordinate corresponding to the input binary image and K is the set of coordinates for the structuring element. Let Kx denote the translation of K so that its originate is at X. Then the dilation of X by K is simple the set of all points X such that the intersection of Kx with X is non-empty. तो यहाँ पर हमने जो दूसरी डिफिनीशन थी हमने उसको लिया कि हम यहाँ पर सिंपल B का रिफ्लेक्शन लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन देखते हैं X के साथ जब तक के वो नॉन एम्प्टी सेट हो. तो हम यहाँ पर दूसरे डिफिनीशन को यूटिलाइज करते हैं. तो ये सिंपल उसके वर्किंग मेथड है. To compute the dilation of binary image by this the structuring element, we consider each of the background pixel in the input image in turn for each background pixel, which will be called the input pixel. We superimpose the structuring element on top of the input image so that the origin of the structuring element coincides with the input image position. तो यहाँ पर हम सिंपल जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो जो इमेज है उसके ऊपर हम उसकी स्लाइडिंग करते हैं और उसके जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं हम उसकी सिंपल उसके साथ कैलकुलेशन करते हैं इमेज के पॉइंट्स के साथ. इफ द लास्ट one pixel is the structuring element coincide with the foreground pixel in the image underneath, then the input pixel is set to foreground value. If all the corresponding pixel in the image are background, however the input pixel is left at the background value. For our example 3x3 structuring element, the effect of this operation is set to the foreground color. Any background pixel that have a neighboring foreground pixel assume at concatenates. Such pixels must lie at edge of white region, and so the practical upshot is that foreground region grow. The hole inside a region shrinks. So what is the output effect? Most implementation of this operation expect the input image to be binary, usually with foreground pixel at pixel value 255 and the background pixel at pixel value 0. Such an image can often be produced from a grayscale image using thresholding. It is important to check that the polarity of the input image is set up correctly for the dilation implementation being used. The large structuring element produce a more extreme dilation effect. Although usually very small effect can be achieved by repeated dilation using a small but similar shape structuring element. With large structuring element, it is quite common to use an approximately disc-shaped structuring element as opposed to a square one.
तो हम नॉर्मली स्मॉल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं तो उससे कम इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर हम बहुत लार्ज स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उस पर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर तो हम इमेज लेते हैं जो वाइट हमारे पास पिक्सेल्स आ रहे हैं, जो वैल्यूज़ हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ, और जो बैकग्राउंड है उसको 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सिचुएशन में जब हम डायलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो जो ये दरमियान में वैल्यूज़ हैं जो ज़ीरोज़ थी वो फिल हो जाती हैं, और जो बाउंड्रीज़ हैं वो सारी की सारी अपग्रेड हो जाती हैं, वो भी एक्सटेंड हो जाती हैं। चूँकि बाउंड्री एक्सटेंड होंगी तो जो एम्प्टी स्पेसेस होंगी वो फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर तो कोई इमेज है जिसके सेंटर में कोई ऐसे नॉइज़ है या पॉइंट्स हैं तो वो फिल हो जाएंगी, लेकिन इससे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो इनलार्ज हो जाएगा। तो नॉर्मली हम करते क्या हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है हम उसको काफ़ी स्मॉल रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चरिंग जो इमेज है वो लाई कर रहा है कुछ इस तरह से कि ये जो सेंटर है ये हमारे पास एम्प्टी है और बाकी जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो अगर हम कोई स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि कंप्लीट हो, इस तरह सारे वैल्यूज़ उसके काउंट हो रहे हों, तो अगर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिंपली क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास फिल हो जाएंगी, और साथ में जो इसका साइज़ है वो भी हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, तो हमारे पास अब इसकी बजाय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो हमने अप्लाई किया डायलेशन का, तो उससे एक तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा और जो उसके जो मिड के पॉइंट्स हैं एम्प्टी सेल्स हैं वो फिल हो जाती हैं। तो ये इफ़ेक्ट पड़ने से कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, कुछ उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। पॉजिटिव क्या हो सकते हैं कि जो हमारे पास नॉइज़ है वो इससे रिमूव हो सकता है, और हम इससे और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम जो हैं उसके एजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसका जो साइज़ है वो डिफरेंट हो जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। This image was produced by 2 dilation processes using a disc-shaped structuring element of 11 pixel radius. Note that the corners have been round off. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम राउंड 11 पिक्सल रेडियस का जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है अगर हम वो यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपके जो ये शार्प एजेस थे, जो कॉर्नर्स थे, वो बिल्कुल राउंड के शेप में आ गए हैं। इन जनरल वाइल डायलेशन बाय अ डिस्क शेप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, convex boundaries will become rounded and convex boundary will be preserved as they are. और अगर हमारे पास राउंड शेप की या कॉन्केव टाइप की हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं तो वो ऑलरेडी उसी तरह रह जाएंगी, लेकिन जो कन्वेक्स बाउंड्रीज होंगी वो हमारे पास राउंडेड हो जाएंगी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो दरमियान में होल है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसके दरमियान ये ब्लैक डॉट है, तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर दिस 11 पिक्सल रेडियस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हम अप्लाई करें तो इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रह जाता है। तो हमने जब बात की कि क्योंकि ये जो डायलेशन है इससे हम स्मॉल होल्स जो हैं उनको फिल कर सकते हैं, तो यहाँ हम एक नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं जो कि नॉर्मल सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ है, तो हम उसको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं अगर हम सिंपल डायलेशन अप्लाई करते हैं। द इमेज शोज द रिजल्ट्स ऑफ डायलेशन दिस इमेज विद 3x3 स्क्वायर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अगर हम 3x3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करते हैं तो उससे जो नॉइज़ है वो रिमूव हो जाता है। नोट दैट द although the noise has been effectively removed, the image has been degraded significantly.
हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर हम इमेज को देखें तो उसका तो एक साइज़ डिफरेंट आ गया है और जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो हमारे पास रिमूव हो गई हैं। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये जो पैटर्न है ड्रेस का वो यहाँ पर विजिबल नहीं है। और दूसरा जो हमारे पास बैकग्राउंड था जो कि बहुत क्लियर यहाँ पर था इस सिचुएशन में, उसमें शेड्स आ गए हैं। तो ये हम उसके इफ़ेक्ट्स भी देख सकते हैं जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हमारे पास आ रहे हैं। Dilation can also be used to edge detection by taking the dilation of image and then subtracting away the original image. Thus highlights just those new pixels at the edge of the objects that were added by the dilation. For example, हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि पहले हम डायलेशन अप्लाई करते हैं, तो डायलेशन के बाद जो हमारे पास इमेज आएगा वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनल इमेज से। तो जब हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चूंकि डायलेशन से एक्स्ट्रा पिक्सेल्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो क्योंकि बॉर्डर पर होती हैं तो हम उस बॉर्डर वाले पॉइंट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। तो अगर सेंटर के पॉइंट है तो हम उसको भी विजुलाइज कर सकेंगे, और अगर वो बॉर्डर के पॉइंट्स हैं तो हम उसको भी विजुलाइज कर सकें क्योंकि वो ऐड अप हो रहे हैं। तो वो पॉइंट्स जब हम आइडेंटिफाई कर सके तो हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास उसके एजेस आ रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है। तो डायलेशन के और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम उनको और मुख्तलिफ लोकेशंस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इरोजन की तरफ। द इरोजन ऑपरेटर टेक्स टू पीस ऑफ डेटा एज अ इनपुट। द फर्स्ट इज द इमेज विच इज़ टू बी eroded. The second is usually small set of coordinate points known as the structuring element. जो हम दो images लेते हैं, एक तो image हो गया और दूसरा structuring element हो गया। It is structuring element that determines the precise effect of the erosion in the input image. अब जिस तरह हमने कहा कि structuring element जो है वो totally depend करता है कि आपके image के ऊपर क्या process होगा, उसके ऊपर क्या effect पड़ेगा। अगर हम इसके मैथमेटिकल फार्मूला देखना चाहें तो सिंपली हम लेते हैं x जो हमारे पास इमेज है और उसका इरोजन लेते हैं माइनस। इरोजन के लिए हम माइनस साइन लेते हैं और उसके बाद हम b जो हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसको लेते हैं। तो p इज a member of z square, and this z square is because of two dimension, such that p plus b belongs to x for every b belongs to capital B। तो अब ये हमारे पास एक इरोजन की डिफिनीशन आ गई कि जो हम p वैल्यू लेते हैं, जो कोई भी पॉइंट होगा और वो टू डायमेंशन से होगा, अगर हम उसकी एडिशन करते हैं तो अगर हम एडिशन करेंगे तो वो x से बिलोंग करे। अगर तो वो x से बिलोंग नहीं करेगा फॉर एवरी पॉइंट ऑफ b तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, हम उसको ऐड नहीं करते, हम उस इमेज से हटा देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब हम x के साथ b को ऐड करते हैं और वो x के साथ बिलोंग ना करे तो हम उस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, मतलब वो उससे बिलोंग नहीं करेगा। इसकी सेकंड डिफिनीशन ये हो सकती है कि x इरोजन b इज इक्वल टू p such that b of p is subset of x। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पॉइंट लेते हैं कोई भी, तो जब हम इरोजन जो हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ले रहे हैं वो सबसेट होना चाहिए x का। तो जो भी इसके पॉइंट्स आएंगे वो सबसेट होने चाहिए x के। अगर तो नहीं आ रहे तो वो हम उन पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं सिंपली।
अब इस सिचुएशन में अगर हम एग्जैक्टली कन्वर्ट करते हैं इमेज को बाइनरी में और हम कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, अगर हम उसको लेते हैं, इस सिचुएशन में हम लेते हैं 3x3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को, तो इस सिचुएशन में जब हम अप्लाई करेंगे तो उस सिचुएशन में जब भी पॉइंट हमारे पास आएंगे एजेस के ऊपर तो वो रिमूव हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम उनको आपस में ऐड करेंगे तो वो नॉर्मली कोई एक पॉइंट जो है वो बाहर आएगा, इस पॉइंट के इसके साथ आएगा। तो चूंकि वो दोनों पॉइंट जो हैं बिलोंग नहीं करते सेट के साथ, जो ओरिजिनल इमेज के साथ या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के टोटल पॉइंट्स के साथ वो बिलोंग नहीं करेंगे, तो इस वजह से हम उसके जो आउटसाइड जो भी पॉइंट्स होंगे हम उनको रिमूव कर देंगे। द बेसिक इफेक्ट ऑफ द ऑपरेटर ऑन अ बाइनरी इमेज इज eroded way by or borders or region of foreground pixels. Thus areas of foreground pixels shrink in size and holes within those areas become larger. Strip away a layer of pixel from object, shrinking it in the process. अब हम करते क्या है कि हम एक्चुअली जो इसके बॉर्डर्स हैं उनको रिमूव करते जाते हैं और जो अगर दरमियान में कोई होल होगा तो वो उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको श्रिंक कर रहे हैं। सो हाउ इट्स वर्किंग, एंड एज एग्जांपल ऑफ बाइनरी इरोजन, सपोज दैट द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज अ 3x3 स्क्वायर with the origin at its center as shown in this figure. Note that this is an subsequent diagram. Foreground pixels are represented by 1s and the background pixels are represented by 0. So we already know that the elements that we call it as a 1 and the background we call it as a 0. So this is the coordinate values for this structuring element. The erosion of the binary image A by a binary image B is a 1 at a pixel P if and only if every 1 pixel is the translation of B to P is also 1 in A. तो अब ये हमारे पास सिंपल डिफिनीशन उसकी आ सकती है कि अगर हम इरोजन को लेते हैं, B is a set is 1 at pixel P if and only if every 1 pixel is the translation of B to P is also 1 in A. So to compute the erosion of a binary image by this structuring element, we consider each of the foreground pixel in the input image. In turn, for each foreground pixel, which will call the input pixel, we superimpose the structuring element on top of the input image so that the origin of the structuring element coincide with the input pixel coordinates. If for every pixel in the structuring element, corresponding pixel in the image underneath is a foreground pixel, then the input pixel is left as it is. If any of the corresponding pixel in the image are background, however, the input pixel is also set to a background value. For our example 3x3 structuring element, the effect of this operation is to remove any foreground pixel that is not completely surrounded by other white pixels. Assume at जो हम नाइबर्स लेते हैं 3x3 का, तो उस सिचुएशन में such pixels must lie at the edge of white regions, and so the practical upshot is that the foreground region shrink and the holes inside the region grows. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम सिंपली अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो जो पॉइंट्स जिनकी सराउंडिंग वाइट पिक्सेल्स नहीं है तो वो सारे जो पिक्सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो जिन पॉइंट्स के सराउंडिंग जो है नाइबर्स जो हैं वो अगर वाइट पिक्सेल्स हैं तो हम उनको सिर्फ छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं इनके सराउंडिंग जो हैं वो वाइट पिक्सेल्स हैं।
तो हम सिर्फ इनको छोड़ रहे हैं और बाकी सारे जो हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। और सेम इसी तरह हमारे पास जो ये वाले पॉइंट्स हैं, तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं हम इनको सिर्फ वैल्यूज़ को रख रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि इसके जो सराउंडिंग है वो हमारे पास वाइट पिक्सेल्स आ रहे हैं और जो हमने सेलेक्ट किया है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वो इन बाकी सारों को रिमूव कर देता है। मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑपरेशन विल बी एक्सपेक्ट द इनपुट इमेज to be a binary, usually with the foreground pixel at the intensity value 255 and the background pixel at intensity value 0. Such an image can be often be produced from a grayscale image using thresholding. It is important to check that the polarity of the input image is set up correctly for the erosion implementation being used. The structuring element may have to be supplied as a small binary image or a special matrix format, or it may simply be hardwired into the implementation and not required specifying at all. In this latter case, a 3x3 square structuring element is normally assumed, which gives the shrinking effect described above. The effect of an erosion using this structuring element on the binary image is shown here. So the 3x3 square is probably the most common structuring element used in erosion operation, but other can be used. A large structuring element produces a more extreme erosion effect, although usually very similar effect can be achieved by repeating erosion using smaller similarly shaped structuring element. Erosion can be made directional by using less symmetrical structuring element. For example, a structuring element that is 10 pixel wide and 1 pixel high will erode in horizontal direction only. Similarly, a 3x3 square structuring element with the origin in the middle of the top row rather than the center will erode the bottom of region more severely than the top. अब जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ले रहे हैं तो वो सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हैं उनकी इरोजन करेगा, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो सिर्फ वो वाले वैल्यूज़ रिमूव होंगे, वो श्रिंक होंगे जो कि हॉरिजॉन्टली हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो हमने कौन सा वाला रखा है, और अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा रखते हैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट तो उससे बहुत ज़्यादा श्रिंकिंग होगी, और अगर हम स्मॉल रखेंगे तो उससे कम श्रिंकिंग होगी और जो पॉइंट्स है वो कम रिड्यूस होंगे। दिस इमेज इज़ द रिजल्ट ऑफ enduring 4 times with a disc shape structuring element 11 pixel in diameter. तो हम सिंपल 11 पिक्सल्स का डायमीटर का राउंड शेप का हमने अप्लाई किया है यहाँ पर structuring element. It shows that the hole in the middle of the image increases in the size as broader. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इमेज का जो होल है वो उसका साइज यहाँ पर बढ़ गया है। Note that the shape of the region has been quite well preserved due to use of disc-shaped structuring element. In general, erosion used disc-shaped structuring element will tend to round concave boundaries, but will preserve the shape of convex boundaries. तो जो हमारे पास कॉन्केव बाउंड्रीज होंगी वो उनको राउंड कर देगा, और जो कन्वेक्स बाउंड्रीज होंगी तो उनकी जो शेप्स हैं वो सेम रहेंगी अगर हम इरोजन को अप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखते हैं कि हम इनको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी स्पेशलिस्ट यूज फॉर इरोजन. वन ऑफ द मोर कॉमन इज़ द सेपरेट touching objects in a binary image so that they can be counted using a labeling algorithm. तो अगर हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में उनकी बाउंड्रीज टच हो रही हैं तो हम इस सिचुएशन में इरोजन को यूज़ कर सकते हैं कि हम उनके साइज़ को स्मॉल कर दें, हम उसको कम कर दें, तो वहाँ से फिर हम उसकी लेबलिंग अगर करें तो हम उसको काउंट कर सकते हैं कि वो क्या
कितने ऑब्जेक्ट्स हैं. द इमेज शोज एज अ नंबर ऑफ डार्क डिस्क coins in effect saluted against light background. The result of thresholding the image at pixel value 90 yards. तो 90 yards के लिहाज से हम उसकी थ्रेशोल्डिंग करते हैं. तो थ्रेशोल्डिंग करने के बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपली बाइनरी इमेज में. तो ये हमारे पास कॉइन्स हैं, हम इन कॉइन्स को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं. अब चूंकि इसके जो एजेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम उस सिचुएशन में अगर हम इरोजन अप्लाई करेंगे तो उससे ये जो कनेक्टेड पॉइंट्स है ये रिमूव हो जाएंगे. इट इज़ रिक्वायर्ड टू काउंट द कॉइन्स, हाउएवर दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी सिंस द touching coins from a single fused region of white, and the counting algorithm would have to first segment this region into separate coins before counting an non-trivial task. So हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर काउंटिंग हमने करनी है तो पहले हमें इसको रिमूव करना होगा ताकि हम इसको काउंट कर सकें. तो इस सिचुएशन में अगर हम इरोजन अप्लाई करेंगे तो इरोजन से क्या होगा कि ये जो उसके साइड्स जो कनेक्टिंग बाउंड्रीज हैं वो रिमूव हो जाते हैं. दिस इमेज शोज द रिजल्ट्स ऑफ eroding twice using a disc shaped structuring element 11 pixel in diameter. All the coins has been separated neatly and the original shape of the coins has been largely preserved. At this stage a labeling algorithm can be used to count the coins. The relative size of the coin can be used to distinguish the various type by, for example, measuring area of each distance region. तो यहाँ पर हम काउंटिंग कर सकते हैं अब इस सिचुएशन में कि हम सिंपली उसके रीजन्स को आइडेंटिफाई करें साइज़ के लिहाज से कि कितने साइज़ के बड़े कॉइन्स हैं और कितने साइज़ के स्मॉल कॉइन्स हैं. और वो इस वजह से हम कर सकते हैं कि हमने इसके ऊपर इरोजन अप्लाई की है और इरोजन जो है वो 11 पिक्सल डायमीटर का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई किया है और वो 2 टाइम हमने रन किया है. द इमेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेम इनपुट पिक्चर बट विद 9 by 9 स्क्वायर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ डिस्क. अगर हम यहाँ पर स्क्वायर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है यहाँ से. और उसकी वजह यह है कि जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो 9 by 9 स्क्वायर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है. द कॉइन हैज़ बीन क्लियरली सेपरेटेड एज बिफोर बट द स्क्वायर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हैज़ लेड द डिसओरिएंटेशन ऑफ द शेप विच इज सम सिचुएशन कुड यूज प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द रीजन आफ्टर इरोजन. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जहाँ हम जो डायमीटर या राउंड शेप में हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं. इरोजन गाइडलाइंस फॉर यूज़. सो इरोजन कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव स्मॉल suppresses bright spot salt noise in image. We can also use erosion for edge detection by taking the erosion of an image and subtracting it away from the original image. Thus highlights just those pixels at the edge of the objects that were removed by the erosion. Finally, erosion is also used to use as a basis for many other mathematical morphological operations. तो हम इरोजन जब यूज़ करते हैं तो उससे हम जो सॉल्ट के नॉइज़ है हम उसको रिमूव कर सकते हैं बड़ी इजीली, और साथ में हम एजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम इरोजन अप्लाई करें इमेज के ऊपर और फिर हम उस इमेज इरोजन के बाद जो इमेज आती है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनल इमेज से, तो हमारे पास वो वाले सारे ऑब्जेक्ट्स एरियाज क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएंगे जहाँ पर हमने इरोजन की है. तो यहाँ हम डायलेशन देख सकते हैं. अगर हम सिंपल नाइबर्स की वैल्यूज़ लेते हैं और जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, डायलेशन हैज़ इफेक्ट सिमिलर टू दोज लो पास फिल्टरिंग. द डिटेल्स आर ऑब्जर्व्ड. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज है और यहाँ हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कनेक्ट किया है. जिस तरह हम इस पॉइंट को देख सकते हैं, यहाँ इसका जो विड्थ है वो बढ़ गई है ऑटोमेटिकली क्योंकि जो साइड वाले पिक्सेल्स हैं उनको
वो उसमें एडिशन करता है। इन द कंसिडर्ड केस द डायलेशन engrosses the characters। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो करेक्टर्स हैं वो इनग्रोस हो गए हैं, साइज़ में बढ़ गए हैं, और साथ में जो पॉइंट्स जहाँ पर मिसिंग एरियाज थे वो फिल्ड हो गए हैं। इरोजन की सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि हम अगर कुछ एरियाज को रिमूव करना चाहते हैं और हम उसको सिंपल देखना चाहते हैं, उसके डिटेल्स फोकस करते हैं एक ख़ास पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के इरोजन के स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इरोजन कैन बी यूज्ड फॉर रियलाइजिंग अ शेप बेस्ड फिल्टरिंग, सो दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग। सो 486 बाय 486 बाइनरी इमेज है हमारे पास, और जो इसका इरोजन आएगा, अगर हम 11 बाय 11 स्क्वेयरिंग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं तो हमारे पास जो पहला बी का इमेज आता है, हम उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं कि जो स्क्वेयरिंग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की वजह से जो सिंपल स्ट्रेट लाइंस थे वो कम हो गए हैं, और जो हमारे पास उसकी वेट थी वो भी श्रिंक हो गई है, वो थिन लाइन बन गए हैं। और सेम अगर हम फिर 15 बाय 15 का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करते हैं तो जो थिन लाइंस थी वो भी रिमूव हो गए, और 45 बाय 45 से हमारे पास बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ गया है। यहाँ पर हम इसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, अगर दोनों को हम कंबाइन करें एक ही इमेज के साथ तो हम देख सकते हैं कि वो इफ़ेक्ट क्या है। ओरिजिनल बाइनरी इमेज ब्लैक, हमारे पास ये जो ब्लैक एरिया है ये ओरिजिनल इमेज है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट रेड है, जो हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई किए हैं वो ये रेड पॉइंट्स हैं, और जो ओरिजिनल इमेज आ जाता है आफ्टर इरोजन और डायलेशन तो वो हमने वाइट के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इमेज लेते हैं और डायलेशन अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास जो वाइट एरिया है ये डायलेशन की बेसिस पर ऐड अप हुआ है, और सेम इसी तरह ये जो एरिया है ये ऐड अप हुआ है। अगर हम इरोजन अप्लाई करते हैं तो इरोजन में हम देख सकते हैं कि ये जो वाइट एरिया है ये हमारे पास इफ़ेक्ट है जो टोटल आ गया है, और हमारे पास जो इरोजन हमने अप्लाई किया तो उससे वो श्रिंक हो गया, उसका साइज़ जो है और स्मॉल हो गया। आप सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हम यहाँ से वापस चले गए हैं और ये जो सारे ब्लैक स्पॉट्स थे ये सारे रिमूव हो गए हैं। इस सिचुएशन में ये जो ब्लैक स्पॉट्स थे उसमें ऐड अप हो गया है और एरिया उसमें ऐड हो गया है। तो ये अब टोटली डिपेंड करता है कि हम इमेज में कौन सा इफेक्ट डालना चाहते हैं, इरोजन का या डायलेशन का, तो ये टोटली हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आज हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है और उसकी हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हमने देखा कि हम सिंपल सेट पॉइंट्स के साथ एक इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको अगर हम सेट पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सेट थ्योरी के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो, और वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो हम उसका एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसका साइज़ बहुत बड़ा रखते हैं तो वो हमारे इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, अगर हम साइज़ कम रखते हैं तो इफ़ेक्ट कम आएगा। तो ये और उसके डायमेंशंस के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या वो 3x3 का कंप्लीट स्क्वायर एलिमेंट है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, या वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है, या वो डायमंड शेप में है, या वो रेडियस की फॉर्म में है। तो ये इस टोटली डिपेंड करता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के ऊपर। फिर आज हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस, डायलेशन और इरोजन का। तो डायलेशन में हम सिंपली इनलार्ज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और जो हमारे पास ब्लैक स्पॉट्स होते हैं हम उसको रिमूव कर लेते हैं, और इरोजन में हम उसको स्क्वीज़ करते हैं, उसका साइज़ हम कम कर देते हैं, और साथ में जो सॉल्ट के नॉइज़ है हम उसको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के जो बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।